یہ علاقہ اسرائیل ہی کا تھا۔ میں نے دبی زبان میں فوجی محافظ سے پوچھا کہ یہ کون سا علاقہ ہے، تو اس نے اشارے سے مجھے خاموش رہنے کو کہا اور باہر تکنے لگا۔ میں نے کوئی خیال نہ کیا، میں بہرحال ایک دشمن جاسوس تھا اور مجھ سے زیادہ بات چیت نہیں کی جا سکتی تھی۔ جیپ اب ایک ایسی سڑک پر آ گئی جہاں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بجلی کے کھمبوں کے ساتھ بلب بھی جل رہے تھے۔ ہم ایک خشک دریا کے پل پر سے گزرے تو جیپ نسبتاً ایک پکی اور ہموار سڑک پر آ گئی۔ علاقہ سطح مرتفع کا تھا، آس پاس چھوٹے چھوٹے ٹیلوں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ مضبوط جسم والا ڈاکٹر اگلی سیٹ پر فوجی ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس نے ایک تھیلے میں سے کوکا کولا نکال کر مجھے پینے کو دیا۔ مجھے بھوک محسوس ہو رہی تھی، لیکن میں اس خیال سے خاموش رہا کہ شاید ہاسپٹل پہنچنے پر یہ لوگ رات کا کھانا کھلائیں۔ ٹیلوں میں سے نکل کر جیپ ایک سیدھی سڑک پر آئی تو مجھے دور بہت سی جگمگاتی ہوئی بتیوں کا جھرمٹ نظر آیا۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا، بڑا ہاسپٹل آ گیا تھا۔ میں نے عبرانی میں ڈاکٹر سے پوچھا کہ ڈاکٹر، وہ سامنے بڑے ہاسپٹل کی روشنیاں ہیں کیا؟ اس نے اسبات میں سر ہلا دیا اور چپ ہو گیا۔ مجھے ان لوگوں کی خاموشی کچھ پراسرار سی لگنے لگی تھی۔ نہ جانے کیوں میرا دل کسی آنے والے خطرے کو محسوس کر سے زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر میں نے اپنے دل کو تسلی دی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہاں معمولی سا چیک اپ ہوگا اور پھر مجھے اس بک بک سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ میں اسی طیارے کے ذریعے تل ابیب اور پھر وہاں سے سینا کی مصری سرحد پر پہنچا دیا جاؤں گا۔ اس کے بعد میں آزاد ہو جاؤں گا اور زندگی کی مسرتوں سے لطف اندوز ہو سکوں گا۔ روشنیاں قریب آ رہی تھی۔ کوئی 20 منٹ کے بعد ہماری جیپ ایک 2 منزلہ سفید رنگ کی خوبصورت عمارت کے پورچ میں کھڑی تھی۔ لابی کا فرش چمک رہا تھا۔ عمارت کے باہر کچھ نہیں لکھا تھا۔ ایک نرس تیز تیز قدم اٹھاتی ہمارے قریب سے گزر گئی۔ میرے سارے خدشے اور اندیشے دور ہو گئے۔ یہ ہاسپٹل ہی تھا، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں تھی۔ میں بڑا خوش جیپ میں سے نکل کر لابی کے فرش پر آ گیا۔ میرے محافظ فوجی بھی میرے پیچھے نکل آئے اور میری بائیں دائیں کھڑے ہو گئے۔ یہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی، آخر میں ایک خطرناک جاسوس تھا، انہیں میری نگرانی تو کرنی ہی تھی۔ سامنے والا شیشے کا دروازہ کھلا اور نیا ڈاکٹر مسکراتا ہوا نمودار ہوا۔ ہمارے ڈاکٹر نے اس سے ہاتھ ملائے اور میری طرف اشارہ کر کے کہا، ڈاکٹر، یہ ہیں تمہارے مریض، ان کا فائنل چیک اپ ہوگا۔ ہم کب تک فارغ ہو جائیں گے؟ کیونکہ مجھے واپس ایئرپورٹ کے کلینک بھی جانا ہے۔ نوار ڈاکٹر نے کہا، 1 گھنٹے میں ہم آپ کو فارغ کر دیں گے، آئیے اندر چلیے۔ ہاسپٹل کی راہداری بھی بے حد صاف ستھری اور چمکیلی تھی۔ اس ویران علاقے میں یہ بہت ہی صاف ستھرا اور اہم ہاسپٹل تھا۔ شاید یہ اعلیٰ اسرائیلی فوجی افسروں کے لیے بنایا گیا تھا کہ وہ یہاں آ کر علاج بھی کرائیں اور سکون کے ماحول میں کچھ دن بھی گزار سکیں۔ ایک بحری فوجی کا افسر ہمارے قریب سے گزر گیا۔ ہاسپٹل ایئر کنڈیشن تھا، باہر کی گرم فضا کے مقابلے میں اندر ہلکی ہلکی خوشگوار خنکی تھی، جس میں مختلف دوائیوں کی دھیمی دھیمی بو رچی ہوئی تھی۔ ایک نرس ٹرالی لے کر ہمارے قریب سے گزری۔ ٹرالی پر اسٹین لیس اسٹیل کے تشت میں کچھ شیشیاں اور انجیکشن کا سامان پڑا تھا۔ مجھے ایک چھوٹے مگر صاف ستھرے کمرے میں لے جایا گیا۔ درمیان میں سفید چادر والا بستر لگا دیا گیا۔ سائیڈ ٹیبل پر تھرمس اور گلاس پڑا تھا۔ چھت میں مرکری لائٹ کی 2 ٹیوبیں روشن تھیں۔ میرے فوجی محافظ باہر ہی رہ گئے۔ دونوں ڈاکٹر میرے ساتھ اندر آئے تھے۔ انہوں نے مجھے بستر پر لیٹنے کا اشارہ کیا۔ پھر ایک ڈاکٹر میری نبض دیکھنے لگا، دوسرے نے میری قمیض اوپر کر کے میرے دل پر اسٹیتھوسکوپ لگایا اور اپنی کلائی کی گھڑی پر نظریں جما دی۔ میری میڈیکل فائل اس کے پاس ہی تھی، جو اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی میرے بستر کے سائیڈ ٹیبل پر رکھ دی تھی۔ کوئی 1 منٹ تک وہ میرے دل کی دھڑکنیں اور دوسرا ڈاکٹر میری نبض دیکھتا رہا۔ پھر نئے ڈاکٹر نے میری فائل کھول کر اس میں کچھ لکھا، فائل بند کر کے میز پر رکھی اور دونوں باہر نکل گئے۔ ظاہر ہے میرا فائنل چیک اپ ہو رہا تھا۔ قدرتی طور پر میرے دل میں کسی قسم کا کوئی دوسرا خیال پیدا نہیں ہو سکتا تھا اور وہاں کوئی ایسی شے بھی نظر نہیں آ رہی تھی کہ مجھے کوئی خطرہ محسوس ہوتا۔ آخر خطرہ کس بات کا ہو سکتا تھا؟ ڈاکٹر دروازہ کھول کر باہر نکلے تو میں نے دیکھا کہ باہر دونوں فوجی محافظ اسٹین گنے اٹھائے پہرا دے رہے تھے۔ یہ بھی کوئی انوکھی بات نہیں تھی۔ میں دشمن ملک کا خطرناک جاسوس تھا، میری نگرانی ان کا فرض تھا، ان کی ڈیوٹی تھی۔ میں صحت مند تھا، اس لیے عین وقت پر میری بھوک چمک اٹھی تھی، مگر ابھی تک ان لوگوں نے مجھے کھانے کو کچھ بھی نہ دیا تھا۔ اس منحوس جزیرے کے جلاد انچارج نے جاتے ہوئے مجھے میری گھڑی بھی واپس نہیں کی تھی۔ نامعلوم رات کا کیا بجا ہوگا،
कमरे में कोई वाल क्लॉक भी नहीं लगा था, इसमें कोई घड़ी भी नहीं थी। दीवार पर एयर कंडीशन का चौकोर चौखटा ही लगा था। रायदारी के फर्श पर किसी छोटे छोटे कदमों की टिक टिक सुनाई दी। ये आवाज़ मेरे कमरे के दरवाजे के पास आकर रुक गई। दरवाज़ा खुला और एक दुबली पतली गोरी चिट्टी नर्स हाथ में स्टेनलेस स्टील की ट्रे लिए अंदर दाखिल हुई। मेरे पास आकर ट्रे साइड टेबल पर रखी, उसमें से थर्मामीटर निकाल कर झाड़ा, फिर मेरे मुंह में लगाया और अपनी कलाई पर बंधी हुई सुनहरी घड़ी को तकने लगी। जब वो मेरा टेम्परेचर ले चुकी तो मैंने उस वक्त उससे पूछा। इसने कोई जवाब न दिया और टिक टिक करती बाहर निकल गई। दरवाज़ा खुलने पर मुझे बाहर खड़े मुसल्ला मुहाफिजों की एक झलक फिर दिखाई दी। क्या ये नर्स गूंगी थी? लेकिन हॉस्पिटल में गूंगी बहरी नर्स का क्या काम? फिर उसने मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दिया? शायद उसे मुझसे बात करने की इजाज़त नहीं होगी। आखिर मैं कोई आम मरीज तो नहीं हूँ, दुश्मन मुल्क का जासूस हूँ। मैं अपने आप से यूं ही बातें करने लगा। राहदारी में खामोशी छाई थी। किसी वक्त दूर से किसी दरवाजे के खुलने और बंद होने की आवाज़ आ जाती थी। मैं गहरी सोच में डूब गया। फिजा में मुझे कुछ पुरस्रार सी बात का एहसास हो रहा था। इतने में बाहर से कदमों की आवाज़ आने लगी। मैं साफ सुथरे बिस्तर पर पलंग से टेक लगाए नीम दराज था। दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। इस हॉस्पिटल का डॉक्टर अंदर दाखिल हुआ। उसके साथ वही सफ़ेद सूट वाला 1.5 उम्र का कमज़ोर और उदास चेहरे वाला पुख्ता उम्र का डमी था, जिससे जजीरे में मेरी मुलाकात हुई थी। इसकी कनपट्टियों के बाल सफ़ेद हो रहे थे। शक्ल सूरत से वो कोई डिप्लोमेट लगता था। उसके हाथ में फूलों का एक गुलदस्ता था। मुझे पेश करते हुए उसने खंदा पेशानी से मेरी रिहाई पर मुबारकबाद दी और डॉक्टर से कहा, डॉक्टर, सब मामलात तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक होने चाहिए। डॉक्टर ने मेरी मेडिकल फाइल खोली और मेरे बिस्तर से जरा परे ले जाकर उसे कुछ दिखाने लगा। सफ़ेद सूट वाला जर्द रूड डुप्लीमेट आहिस्ता आहिस्ता सारी लाकर जैसे अपनी खुशनुदी का इजहार कर रहा हो। जाते हुए उस डिप्लोमेट ने, आज सुबह सुबह तुम अपने मुल्क की तरफ रवाना कर दिए जाओगे। उसने एक मैनीखेज निगाह डॉक्टर पर डाली। दोनों जरा सा मुस्कुराए और कमरे में से निकल गए। मैंने ज़माने के बड़े सर्द गर्म देखे थे। हर किस्म के माहौल में ज़िंदगी बसर की थी। कातलों, डाकुओं, जंगली वैशियों और वतन पर जान निसार कर देने वालों के साथ भी रहा था। अब मुझे यकीन हो गया कि यहाँ कुछ हो रहा है। मेरे खिलाफ कोई घनौनी साजिश तैयार की जा रही है। मैं यहाँ महफूज नहीं हूँ। मैं इस मुअम्मे को हल करना चाहता था और इसका बज़ाहिर कोई तरीका नज़र नहीं आ रहा था। मैं इन लोगों के दिलों के भेद मालूम करना चाहता था। आखिर इनके दिलों में क्या है? ये हकीकत में क्या चाल चल रहे हैं? ये वो सवाल थे जिनका जवाब मुझे हर हालत में हासिल करना था। काफ़ी सोच विचार के बाद आखिर एक ही तरीका सुझाई दिया। मैंने इसी पर अमल करने का फैसला कर लिया और अपने कमरे में किसी के दाखिल होने का इंतज़ार करने लगा। मुझे इन लोगों पर इसलिए भी शक पड़ा कि मैंने नर्स से कुछ खाने के लिए मांगा क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। तो उसने कहा कि अभी तुम्हें खाने को कुछ नहीं मिलेगा, थोड़ा इंतज़ार करो। ये तमाम अलामात किसी ऑपरेशन की थी। क्या ये लोग मेरा ऑपरेशन करने वाले थे? 15-20 मिनट के बाद राहदारी में एक बार फिर किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। टिक टिक टिक। नर्स आ रही थी। मैं जल्दी से बिस्तर से उठकर कमरे में टहलने लगा। अपनी स्कीम पर अमल करने का वक्त आ गया था। दरवाज़ा खुला। वही नर्स टेम्परेचर देखने वाला सामान ट्रे में रखे अंदर दाखिल हुई। मैंने सोची समझी स्कीम के मुताबिक उससे बातें करनी शुरू कर दी। नर्स ने मुझे बिस्तर पर लेट जाने को कहा। मैं बड़ी फुर्ती से अपने पलंग की तरफ बढ़ा और फिर प्रोग्राम के मुताबिक खड़े कल से धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ा। यूं जाहिर किया जैसे मैं बेहोश हो गया हूँ। नर्स घबरा कर पीछे हट गई। फिर उसने मुझे उठाने की कोशिश की। मैंने अपना आप छोड़ दिया था। परेशान होकर उसने बाहर खड़े गार्ड को आवाज़ें दी। मैं बहुत ही नीम व नज़रों से तक रहा था। दरवाज़ा ज़ोर से खुला। दोनों स्टेन गन वाले फौजी दौड़कर अंदर आए। नर्स ने उन्हें बताया कि ये बेहोश हो गया है, इसे बिस्तर पर डालो, मैं डॉक्टर को खबर करती हूँ। वो तेज़ी से बाहर निकल गई। गार्ड ने मुझे उठाकर बिस्तर पर डाल दिया और मेरे दरवाजे में अंदर की जानिब अटेंशन होकर खड़े हो गए। मैं बिल्कुल बेसुध पड़ा था मगर बहुत ही नीम व आंखों से बराबर दरवाजे की तरफ देख रहा था। ये ढोंग मैंने इस उम्मीद पर रचाया था कि हो सकता है मुझे बेहोश पाकर ये लोग अपनी ज़बान से कोई राज की बात उगल दें और मुझे संगीन सूरत हाल का इल्म हो जाए। रायदारी में तेज़ तेज़ कदमों की आवाज़ सुनाई दी।
दरवाज़ा ज़ोर से खुला। दोनों डॉक्टर परेशान हालत में अंदर दाखिल हुए। उनके पीछे पीछे नर्स भी चली आ रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। अब उन्होंने मुझे उल्ट पुलट कर देखना शुरू कर दिया। मेरी नब्ज़ देखी, आंखों के पपोटे खोल कर देखे। मैंने ढीले ऊपर चढ़ा लिए थे। उन्होंने नर्स को वहां से भिजवा दिया। फिर मुझे एक इंजेक्शन दिया गया। एक डॉक्टर मेरा ब्लड प्रेशर चेक करने लगा। दूसरे ने कहा टेम्परेचर नॉर्मल है, इसकी बेहोशी की कोई वजह मेरी समझ में नहीं आती। दूसरे ने कहा इसको हर हालत में होश में आना चाहिए, वरना हमारी नौकरियां तो खत्म समझो। मुझे तो अचानक नर्वस ब्रेक डाउन लगता है। दूसरे की आवाज आई, किसी ने इसे बता तो नहीं दिया कि इसका दिल निकाल कर सेनेटर जोसेफ को लगा? पहले डॉक्टर ने उसकी बात काट दी। एहतियात से काम लो डॉक्टर, यहाँ कोई भी तुम्हारी बात सुन सकता है। मेरे जिस्म में खौफ की ठंडी यख लहर दौड़ गई। पहले मैं बेहोश नहीं था, लेकिन जो कुछ मेरे कानों ने सुना उसके बाद मुझे यूं लगा कि मैं वाकई बेहोश हो रहा हूँ। मेरे खुदा, ये लोग मेरा दिल निकाल कर किसी सेनेटर जोसेफ को लगाने वाले हैं। यकीनन सेनेटर जोसेफ वही कमजोर चेहरे और सफेद सूट वाला अधेड़ उम्र आदमी है जो थोड़ी देर पहले मेरे लिए फूलों का गुलदस्ता लाया था। अब मेरी समझ में आ गया कि ये लोग मेरी इतनी खिदमत क्यों कर रहे थे, मुझे क्यों खिला पिला कर सेहतमंद किया जा रहा था, मुझे कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा था। ये सेनेटर ज़रूर इजरायली पार्लियामेंट का कोई अहम तरीन रुकन है और दिल का मरीज है, और मेरा धड़कता हुआ जिंदा दिल निकाल कर उसके सीने में पेवस्त करने वाले हैं। ये ऑपरेशन नहीं बल्कि मेरी मौत और मेरी लाश की चीर फाड़ थी। फौरी तौर पर मुझे यूं लगा जैसे मैं ज़रा सी भी मुज़ाहमत करने के काबिल नहीं रहा, और ये लोग मेरे होश में आने के बाद मुझे स्ट्रेचर पर बांध कर ऑपरेशन थिएटर में ले जाएंगे, जहां मेरे पहलू में 2 स्ट्रेचर पर जर्द रू इसराइली सेनेटर जोसेफ स्ट्रेचर पर बेहोश पड़ा होगा। फिर मुझे भी बेहोश कर दिया जाएगा और मेरे सीने में से दिल निकालने के लिए चीर फाड़ शुरू कर दी जाएगी और मैं मर जाऊंगा और मेरी लाश चूने के गड्ढे में फेंक दी जाएगी। ये इंतहाई भयानक, इंतहाई घिनौना तस्वुर था। डॉक्टर मुझे होश में लाने के जतन कर रहे थे। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। कोई तेज़ कदमों से चलता मेरे पलंग के करीब आया। मैंने आंख की एक पलक ज़रा सी खोल कर देखा। ये वही जर्द रू धेड़ उम्र डिप्लोमेट था। वो इज़्तिराब की हालत में बोला, क्या हो गया है इसे डॉक्टर? तुम्हें इसे सेहतमंद हालत में लाने के बाद खुद बेहोश करके इसका हार्ट ट्रांसप्लांट करना होगा। तुम लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि मैंने मौत के जजीरे के इंचार्ज समेत तुम लोगों को 1-1 लाख अमेरिकी डॉलर अदा किए हैं और मैं पार्लियामेंट का एक अहम रुकन भी हूँ। अगर मेरे साथ धोखा किया गया तो तुम्हारी खैर नहीं है। एक डॉक्टर ने नरम लहजे में कहा, सेनेटर जोसेफ प्लीज़ आप चलकर अपने कमरे में लेट जाएं। ऑपरेशन आधी रात के बाद अपने तयशुदा टाइम पर ज़रूर होगा। इसे अभी ही होश आ जाएगा। सेनेटर जोसेफ खामोशी से सर को झटकता हुआ बाहर निकल गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगर आधी रात से पहले पहले मैं यहाँ से फरार होने में कामयाब ना हो सका तो सुबह मेरी कटी फटी दिल से खाली लाश चूने के गड्ढे में सड़ रही होगी। अब मैं होश में आ जाना चाहता था ताकि डॉक्टर मुतमईन होकर चले जाएं और मुझे यहाँ से फरार होने के बारे में सोचने का मौका मिल सके। मैंने इंतहाई नकात के आलम में हूँ की आवाज़ हल्क से निकाली और आंखें खोल दी। डॉक्टरों ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। मैंने पूछा, डॉक्टर मुझे क्या हो गया था? हट्टा कट्टा डॉक्टर बोला, शायद कमजोरी के बायस तुम बेहोश हो गए थे, तुम्हें ताकत का इंजेक्शन लगा दिया गया है। दूसरे डॉक्टर ने मेरे बाजू को थपथपा कर कहा, अब तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए नर्स के हाथ गरम गरम सूप भिजवाता हूँ। और दोनों डॉक्टर जल्दी जल्दी कमरे से बाहर चले गए। बाहर खड़े मुसल्ला गार्ड की खौफनाक झलक मुझे फिर दिखाई दी। मेरा चेहरा गर्म हो गया। मुझे हर हालत में इस मक्तल से फरार होना था। वक्त महदूद था और फरार का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। मौत मेरे सामने खड़ी थी। मौत को इतना करीब से मैंने पहले कभी नहीं देखा था। निस्फ रात की घड़ी नज़दीक से नज़दीक आ रही थी। सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि फरार होने का कोई रास्ता नहीं था। कमरे में कोई खिड़की रोशनदान भी नहीं था। सिर्फ एक दरवाज़ा था जिसके बाहर मुसल्ला पहरेदार संतरी खड़े थे। मैं बैक वक्त उन दोनों को काबू नहीं कर सकता था। मेरे पास नाखून काटने वाली कैंची तक नहीं थी। मुझ पर इज़्तिरारी कैफियत तारी थी। मैं बिस्तर से उठकर कमरे के फर्श पर बेचैनी से टहलने लगा। दीवार को उंगली से बजाकर देखा, ये ठोस थी। एयर कंडीशनिंग वाला चौखटा फर्श से 10-12 फुट ऊंचा था। दूसरे वो छोटा था। मेरी हालत ऐसी थी कि मैं सर धड़ की बाजी लगाने पर तुला हुआ था और मैं कुछ भी कर सकता था।
موت اپنے پنجے پھیلائے انتہائی گھناؤنی اور مکروہ شکل میں آہستہ آہستہ میری طرف بڑھی چلی آ رہی تھی۔ ایسی دہشتناک موت کا میں نے اپنے لیے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ راہداری کی خاموشی میں انسانی قدموں کی چاپ سنائی دی، شاید کوئی میرے کمرے کی طرف آ رہا تھا۔ میں جلدی سے بستر پر نیم دراز ہو گیا اور سر پلنگ کی ریلنگ سے لگا دیا۔ میری آنکھیں دروازے پر لگی تھی، دروازہ کھلا اور ایک کمپاؤڈر قسم کا آدمی لمبا سفید کوٹ اور سر پر سفید ٹوپی جمائے، ہاتھ میں دوائیوں والی ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوا۔ بجلی کی چمک کے ساتھ ایک خیال میرے ذہن میں لہرا گیا، یہی شخص میری زندگی کی آخری امید تھا۔ اگر یہ یہاں سے نکل گیا تو پھر مجھے بھیانک موت سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ میری ساری طاقت جیسے سمٹ کر میرے ہاتھ کے پنجوں میں آ گئی۔ کمرے کا دروازہ ایسا تھا کہ کھلنے کے بعد اپنے آپ بند ہو جاتا تھا۔ اس کمپاؤڈر کے اندر آتے ہی پیچھے دروازہ بند ہو گیا تھا۔ اس نے آتے ہی ٹرے سائیڈ ٹیبل پر رکھی اور مجھے قمیض کی آستین اوپر کرنے کا اشارہ کیا۔ میں اس وقت ایک مکمل کمانڈو کے روپ میں تبدیل ہو چکا تھا۔